Let's start a few basic things about gravitation today. Friends, you all might be knowing about Newton's law of gravitation in your class 9. First, let's go to Newton's universal law of gravitation. Newton's universal law of gravitation. Okay, students, we're taking a body here having mass m1, another body having mass m2. The distance between their center to center is r. So there will be attractive force in between them. That force is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. And combinedly, we can write F proportional to m1 m2 by r square. And you know F is equal to gravitational constant, that is G m1 m2 by r square. Okay. This is Newton's law of gravitation, and you know G is equal to universal gravitational constant. Its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Next, student, you already know about acceleration due to gravity. You know about acceleration due to gravity. Let's start with acceleration due to gravity. Friends, you already know if a body is kept on the surface of Earth, this is Earth, this is having radius r, this is the center. If a body is kept on the Earth, listen. So there is a force. We say it's weight force. Listen, weight is a force that everybody gets due to the attraction, gravitational attraction of Earth. That weight is equal to mg. And if I'll go for gravitational force, that is the same force with which the Earth is attracting that body towards its center. That is G into mass of Earth into mass of the body. While the body is very small, so the radius we are taking is r square. So combinedly, we can write, student, mg is equal to G capital M small m by r square. So that acceleration due to gravity is equal to Gm by r square. Putting the respective values of G, M, and r square, you can get the value of radius of Earth and mass of the Earth and acceleration gravitational constant. You will be getting the value of G is near about 9.81 meter per second. Up to this, you know in your class 9. First, let's know now how the variation of G, how the variation of acceleration due to gravity takes place with respect to height, with respect to depth. If I am moving away from the surface of the Earth, how the G is changing. If I am going into the towards the center of the Earth to some depth, so how the acceleration due to gravity is changing, how the acceleration of gravity is changing with the rotation of the Earth. These few things we'll be discussing now. But let's know next variation of G. Let's know variation of G with height. Variation of G, acceleration due to gravity with height. Height means from the surface of the Earth. Okay. Students, this is the body. Yes, this is Earth having radius r. Okay. This is the center. And the body was kept at this position. Now I took the body to a height. I moved the body to a height h. Okay. So you know, normally we know G is equal to Gm by r square, correct? But here we are saying that the acceleration due to gravity will change. So let at a height h, G dash will be how much? Gm by, the height is becoming r plus h now. R plus h whole square, yes or no? And if I'll take G dash by G, then it is going to be how much? Gm by r plus h ka whole square, all divided by Gm by r square. Okay, correct? So by cancelling out, you could get r square by r plus h ka whole square. Yes or no? Yes, students.
So if we'll take r square common, r square here, and if we'll take r square outside, then r, if r will come outside at, if I'm taking r outside, then it will come as r square, na? Yes or no? So that is 1 plus h by r. Got it? R square cancel. So that is how much? 1 by 1 plus h by r ka whole square. So that is g dash by g is equal to this much. So finally, students, we can write g dash, the variation of g is equal to how much? G whole into g by 1 plus h by r का whole square. Correct? That means, students, अगर मैंने यहाँ पर एक बॉडी अर्थ की रेडियस अर्थ के ऊपर था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड दैट इज द वैल्यू इज मैक्सिमम. दैट मैंने बॉडी को अभी कुछ हाइट तक लिया, मैंने जो हाइट तक लिया, दैट हाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. मैंने बॉडी को अर्थ के रेडियस की हाफ की बराबर ऊंचाई तक ले लिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना बन जाएगा ओरिजिनल का? तो दैट इज जी बाय 1 प्लस एच की जगह पे क्या डालेंगे स्टूडेंट्स? r by 2 डालेंगे ना. h by r का होल स्क्वायर है, जी डैश बाय h by r का होल स्क्वायर. r की h की जगह पे मैंने क्या डाला? r by 2 बाय r था पहले से. गेटिंग ना स्टूडेंट्स? h की जगह पे हमने क्या डाले? r by 2 डाले. 1 प्लस h by r, h की जगह पे मैंने r by 2 डाला, और ये r by 2 बाय r स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पर टेकिंग g कॉमन, g डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर ना. yes or no? Yes, sir. So that is equal Sir, to how 4 much? by 9g. Yes, g by 2 plus 1 3, 3 by 4, 3 by 4 का स्क्वायर कितना? 9 by 4. So that is equal to 4g by 9. Okay. So acceleration due to gravity is going to be how much? 4g by 9. g by 3 दे सकता है. It could be anything, could be given in the question. You have to put the value of h. अगर मैंने अर्थ के रेडियस की बराबर ले लिया, if I took h बराबर r, अगर मैंने h की बराबर ले लिया, तो g डैश कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पर g by 1 plus 1, क्योंकि r की जगह पे h डाल दिया, और यहाँ पर मैंने r डाल दिया मैंने. ठीक है, तो कितना हो जाएगा Sir, ये? g by 4. 4 r square. 3/4. तो d डैश इज इक्वल टू g by 4. इस तरह भी हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, just note it down students. If sometimes students, you have not studied about binomial theorem, if the radius of earth is, the height taken is very less than radius of earth, okay, then if the height is very less than radius of earth, then we can neglect that one, and g dash could be written as, students, just remember this formula also, g whole into 1 minus 2h by r. Correct? 1 minus 2h by r. This formula also you remember. Seeing this case, you will be doing it. 1 minute, just a minute. And let's now effect of depth, effect of g on depth, effect of g on depth. And before that, I would like to say you something, so that the different links. Friends, you know g is equal to gm by r square, na? Correct? And if I'm saying you about the density of earth, you know, density is equal to mass by volume, students. And earth is a sphere, na? So what is the volume of a sphere? 4 by 3 pi r q, na? Yes or no? So mass of the earth, I can write density into volume, and density के अर्थ की डेंसिटी रहा, और वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 4 by 3 pi r q. करेक्ट? तो ये फॉर्मूला को भी हम इस तरह अरेंज कर सकते हैं, g into m की जगह पे हमने लिखे 4 by 3 pi r q into rho. करेक्ट? होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अगर हम यहाँ पर r स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स? देखो 4 by 3 into pi into g into r. 4 by 3 रहा, pi रहा, g रहा, एक r स्क्वायर कैंसिल होके r into rho. फ्रेंड्स समझ में आ रहा ना? So acceleration due to gravity at a depth d from the surface of earth, students, अगर हम उसको डिराइव करेंगे, ठीक है,
इफ आई डिराइव दैट वन, अगर हम मान के चलो ये अर्थ है, लेट दिस इज अर्थ एंड मैंने कुछ डेप्थ तक ले लिया, आई टुक इट टू सम डेप्थ, लेट्स सी हाउ इट इज हैपनिंग। दिस इज अर्थ और मैंने यहाँ पर दिस इज द सेंटर, मैंने कुछ इस डेप्थ तक ले आया स्टूडेंट्स। आई मेड द बॉडी टू कम टू दिस पोजीशन। फ्रेंड्स एक चीज याद रखो, अगर बॉडी इस पोजीशन तक आ जाता है तो अभी मैं पहले जो पूरा मास ले रहा था, अभी थोड़ी ना मैं पूरा मास ले लूंगा, अभी मैं कौन सा मास लूंगा, जितने पार्ट इतने पार्ट मास लूंगा, जितना डेप्थ आया उसको छोड़ के आर माइनस एच कर देंगे। अगर ये डी डेप्थ में आया है तो जो बाकी का जो आर्थ है उसका रेडियस कितना बन जाएगा, आर माइनस डी बन जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो हम उसी का वॉल्यूम Yes, लेंगे, sir. उसी का डेंसिटी लेंगे, उसी का मास मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पर जी एट ए डेप्थ डी निकालूं उसी के हिसाब से, तो वो बन जाएगा 4/3 पाई जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डेप्थ इंटू रो। सारे कांस्टेंट अगर देखेंगे हम, 4/3 पाई जी आर ई माइनस डी और रो, सारे अगर कांस्टेंट देखेंगे तो स्टूडेंट्स अगर मैं जी डेप्थ निकालूं तो जी डेप्थ विल बी इक्वल टू जी होल इंटू 1 माइनस डी बाय आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, दिस फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज जनरलाइज्ड फार्मूला। अगर स्टूडेंट मैंने क्या किया, अभी आपको बताया कि मैंने अर्थ के रेड सेंटर तक ले लिया बॉडी को, द बॉडी इज एट द अर्थ सेंटर, दैट मींस ये डी जो है वो कितना तक हो गया, आर तक हो गया ना, डी इज इक्वल आर बन गया। तो वहां पर जीडी कितना बन जाएगा, व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ? सर जीरो। समझ में आया? 0. तो अगर वो 1% 2% इस तरह दिया होगा तो आप बना पाओगे, परसेंटेज चेंज भी निकाल पाओगे। ठीक है, यू कैन ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज मतलब ओरिजिनल कितना था, अभी हुआ कितना, जी माइनस जी डी बाई जी, कितना डिक्रीज हो रहा है इनटू 100। यहीं से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम डी, अगर डी और आर ई पे रिप्लेस करेंगे तो डी आर ई देखो ये बन जाएगा ना, ओनली डी बाई आर ई इंटू 100। वो दिया होगा कि अर्थ की रेडियस उतना है, मैंने उसको अभी उसको इतना नहीं ले लिया, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। तो आप डायरेक्टली डी बाई आर ई कर सकते हो, नहीं तो इस तरह जी डैश निकालोगे, फिर जी के साथ डिवाइड करोगे, फिर 100 मल्टीप्लाई करोगे, यू कैन डू लाइक दिस आल्सो। और आप डायरेक्टली डी बाई आर ई करके भी निकाल सकते हो परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ। ठीक है, अंडरस्टूड? अगर स्टूडेंट इंक्रीजिंग हाइट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ हाइट दे दिया, तो उसने पूछा कि डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू मतलब क्या, जी माइनस जी एच लिखेंगे ना। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी मतलब हाउ मच, जी जी माइनस जी एच, करेक्ट। जी माइनस जी एच करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि वो जो वैल्यू हम लिए थे कितना 2gh पाई लिए थे ना, जी क्या था स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पिछले वाला वैल्यू हम लिए थे, जी इज इक्वल हाउ मच, जी डैश इज इक्वल हाउ मच, जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर से किए थे ना, छोटा वैल्यू के लिए, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर क्या किया ना, जी माइनस जी डैश कर दिया, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, जी माइनस जी डैश कितना आ जाएगा, ओनली 2gh बाई आर आ जाएगा ना, करेक्ट। 2gh बाई आर आ जाएगा। देखो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया और चेंज मैंने पूछा कितना चेंज हुआ, तो जी माइनस जी डैश करेंगे तो 2gh बाई आर आ जाएगा। अगर मैंने परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज में क्या करोगे, जी माइनस जी जी डैश की हाइट पे डिवाइडेड बाई जी इंटू 100, यानी तो फिर डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 2h बाई आर ई इंटू 100 कर सकते हो। पर स्मॉल वैल्यू बता रहा हूँ, अगर हाईएस्ट वैल्यू दिया तो आप नॉर्मली निकालोगे जैसे निकाल रहे थे, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर वैसे करके हाइट में। और ये जो मैं 2h बाई आर ई बता रहा हूँ स्मॉल वैल्यू के लिए, 100 मीटर ऊपर ले लिया मैंने, 100 किलोमीटर, कहाँ 6400 किलोमीटर, कहाँ 50 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? ऑन दैट बेसिस विल अप्लाई द फॉर्मूला approximately कि how the acceleration due to gravity is varying with height and with depth। चलो अगर मैंने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए चाहा तो अर्थ सेंटर पे, मानो कि ये अर्थ की सेंटर है, ठीक है, दिस इज अर्थ सेंटर, और ये जी डैश कैसे वेरी कर रहा है जी, एंड दिस इज द आई एम टेकिंग द रेडियस आर, और ये मानो कि यहाँ पर आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो मतलब अर्थ सेंटर, अर्थ सेंटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जीरो है ना, तो ग्राफ 0 0 से शुरू होगा। और मैक्सिमम डेप्थ डी के हिसाब से वेरी करता है, कहां तक मैक्सिमम कहाँ है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट मींस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ g is equal to how much, acceleration due to gravity, exactly g, yes or no, so this is g max,
यस सर नो, जी वेरिंग हियर विथ रिस्पेक्ट टू आर, और फिर वहां से जब हाइट के ऊपर जाता है तो 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर के हिसाब से वेरी करता है, सो दैट मींस इट इज वेरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो यहाँ पर g dash is inversely proportional to r square. So this is the graph how the variation of g occurs from the center to the surface again to a particular height. Variation of g with height and depth. एक ही बार में आप दिखा सकते हो, ठीक है friends? Variation of g with rotation of earth. Okay, next we'll go for variation of g with rotation of earth. Variation of g with rotation of earth. Variation of g with rotation of earth. After this we'll do a few numericals so that you can understand how changes is happening. Friends, let's see here. Earth is rotating, students. Okay, this is the center of Earth. Let the bodies at this point. Yes or no? Friends, one, see here. This is the axis of rotation. Okay, is rotating. Friends, when the Earth is rotating, you see always there is a force towards the center of the Earth. Na? Yes or no? Always there is a force towards the center of the Yes, Earth. That sir. is empty, na? Yes or no? Correct. So G is acting in this direction, correct? Due to that force. Another force, when a body moves in a circular force, you know about centripetal and centrifugal force. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. That is equal to how much mv square by r, na? And student, in circular motion, linear velocity is equal to radius times of angular velocity. V is equal to r omega. Okay. So in centripetal force and centrifugal force are equal in magnitude but opposite in direction. Centripetal मतलब center seeking, जो कि towards the center act करता है और along the radius act करता है, ठीक है? But centrifugal it always acts away from the object. अगर यहाँ पर body इस तरह rotate कर रहा है इसके side पे, it is rotating like this, पूरा इस तरह चक्कर लगा रहा है अर्थ की इसी लेवल पे, इसी लैटिट्यूड पे, ठीक है? तो स्टूडेंट यहाँ पर एक फोर्स लगेगा दैट इज mv स्क्वायर बाय आर। अगर मैंने एंगुलर वेलोसिटी वहां पर ले लिया तो v की जगह पे क्या डालेंगे r ओमेगा, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r, तो एक r कैंसिल हो जाएगा ना, दैट मींस कितना लगेगा वहां पर mr ओमेगा स्क्वायर ना, यस नो? एंड स्टूडेंट्स यू नो नेट फोर्स इज इक्वल टू ak Yes, फोर्स इज sir. इक्वल टू mg और ak f इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। सो दिस r ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज वन एक्सेलरेशन, दिस इज वन एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है? एंड दिस इज g। सो अगर देखेंगे तो एक g यहाँ पर काम कर रहा है और एक एक्सेलरेशन इस तरफ काम कर रहा है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? ये g है, ये r ओमेगा स्क्वायर है, दोनों इस तरफ काम कर रहा है। तो दोनों अगर इस तरह काम कर रहा है तो स्टूडेंट देयर विल बी रिजल्टेंट ना। अगर मैं इसका बनाया, अगर मैंने इसका ये बनाया तो इसके रिजल्टेंट एक काम करेगा, दैट विल बी g डैश, ओके? दैट विल बी g डैश। तो उसका डेरिवेशन ये है स्टूडेंट्स कि g डैश इज इक्वल टू, जस्ट रिमेंबर, g होल इनटू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर पाई। पाई मतलब में जहां पर बॉडी प्लेस हुआ है वो कितने एंगल बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल इक्वेटर के साथ, ठीक है? तो g डैश इज इक्वल टू g इनटू r ओमेगा स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर फाई। स्टूडेंट्स अगर मैं बॉडी को यहां पर ले जाऊंगा तो फाई कितना बन जाएगा, 90 ना? अगर मैं इस पॉइंट पे ले लिया बॉडी को यहां से यहां तक तो ये पूरा फाई Yes, कितना बन sir. जाएगा, 90 90। बन जाएगा। अगर मैं यहां पर ले आया सर 0 बन जाएगा। तो इसी तरह हम इसको बोलते हैं ना इक्वेटर, इसको बोलते हैं ना पोल, ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। पोल, यस सर सर। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो अगर मैंने पूछा कि इक्वेटर और पोल के बीच में क्या होगा, इक्वेटर और पोल एग्जैक्टली ऑन इक्वेटर एक्जैक्टली ऑन पोल क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एट इक्वेटर स्टूडेंट्स फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0 एट इक्वेटर, यस सर नो? सो g dash is going to be how much, cos 0 is 1, g dash is only g minus r omega square। अगर किसी भी तरह मैंने आपको v दे दिया और आपको अर्थ के रेडियस के बारे में पता है तो आप ओमेगा भी निकाल दोगे ना, बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो वहीं से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज हो रहा है विथ रोटेशन, ये भी आप निकाल सकते हो। ये एक चीज हुआ इक्वेटर पे। अगर पोल पे लेके जाए स्टूडेंट्स, पोल पे फाई कितना है, 90 डिग्री ना? अगर पोल पे फाई 90 डिग्री है तो जी डैश कितना हो जाएगा, cos 90 is 0, तो जी डैश इज इक्वल टू जी, गॉट इट? एग्जैक्टली अगर पोल पे ये घूम रहा है स्टूडेंट्स, मतलब क्या है कि ये अर्थ है, इस तरह एक्सिस ले लो थोड़ा, ऐसे बॉडी घूम रहा है इक्वेटर लाइन पे, चक्कर लगा रहा है अर्थ को, और यहाँ पर ऐसे घूम रहा है,
मतलब इसी पाथ में, इस तरह पीछे वाले पाथ में दिख नहीं रहा है, आज के आर्ट की साइड पे वो चक्कर लगा रहा है, तो वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू कैसे वेरी हो रहा है, जी डैश है इक्वेटर में, जी डैश है पोल पे, और ये रहा मेरा जनरल एक्सप्रेशन। समझ पे आया? सो स्टूडेंट, जी डैश इज मिनिमम एट पोल्स, यस सर नो? स्टूडेंट्स, जी डैश कहां पर है पोल्स पे, यस क्या है, सर। मिनिमम है, और मैक्सिमम सर कहां पर है, मिनिमम मैक्सिमम कहां, इक्वेटर। इक्वेटर पे। तो मैं जब इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हूं तो जी डैश क्या हो रहा है, घटते घटते जा रहा है, सर डिक्रीजिंग, यस सर डिक्रीजिंग नो? यस। तो इसीलिए एक बॉडी को मैं इक्वेटर पे जितना वेट करवाऊंगा, अगर मैं उसको लेके पोल पे वेट करवाऊंगा तो वेट में वेरिएशन आएगा कि नहीं? दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स लेट रोटेशन के ऊपर एक, हाउ द रोटेशन इज अफेक्टिंग द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं। फ्रेंड्स, सपोज द अर्थ इंक्रीजेस इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन, अर्थ जो है ना उसका स्पीड ऑफ रोटेशन को इंक्रीज करवा दे रहा है, ठीक है? at what new time period will be at what new time period will the weight of the body on the equator become zero? दैट मींस हमें टाइम पीरियड निकालना होगा, अर्थ ने उसकी रोटेशन को इंक्रीज करवा दिया, ठीक है? तो अर्थ इंक्रीजेस इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन एट व्हाट न्यू टाइम पीरियड, अभी टाइम पीरियड क्या होगा, will the weight of the body on the equator become zero? और ऐसे ही आप g को ले लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g you take as 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and radius of earth you take as 6400 किलोमीटर, करेक्ट? सो जी डैश क्या बोल रहे हैं, वो जीरो हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी जीरो। इफ जी डैश इज इक्वल टू जीरो, क्या था वैल्यू, मैक्सिमम जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ना, दैट मींस जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना। ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट्स, रेडी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। जस्ट रिमेंबर, जिसको नहीं पता सर्कुलर मोशन के बारे में, जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन पे जाता है स्टूडेंट्स, ये ए टू बी जा रहा है, ठीक है? सो दिस इज द थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ठीक है? दैट ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड, ठीक है? और ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, जी बाय आर का रूट ओवर, करेक्ट? तो स्टूडेंट्स, यू नो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, मैंने बताया ना, अगर एक चक्कर पूरा लगा रहा है तो कितना एंगल जा रहा है, 360, दैट इज 2 पाई, और पूरा एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम पीरियड, दैट इज टोटल टाइम पीरियड। सो दैट मींस मैं लिख सकता हूं 2 ओमेगा के बदले में 2 पाई बाय टी, एंड 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हाउ मच, जी बाय आर। थोड़ा लिंक देखो, तो टी कितना बन गया अभी, 2 पाई इंटू रूट ओवर जी बाय आर, करेक्ट? सॉरी, आर बाय जी, कितना बन जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आर बाय जी, करेक्ट? तो अभी टाइम पीरियड निकालने के लिए हम करेंगे ना कि जीरो बनने के लिए कितना टाइम पीरियड बन जाएगा, कितना अर्थ अपने स्पीड, मतलब जो पहले अभी का डे कितना है, एक दिन कितना है, 24 आवर है ना, अर्थ अर्थ यस अपने सर। एक्सिस के साइड पे पूरा घूमने के लिए 24 आवर लेता है, तो कितने स्पीड पे घूमेगा सो दैट सारे वेटलेस हो जाएगा बॉडी, सो दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, अगर आर की जगह पे मैं डालू, कितना डालूंगा, 6400 किलोमीटर, 6400 इंटू मीटर में अगर कन्वर्ट करूंगा बाय 3, और यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा सो इट विल कम नियर अबाउट 1.4 आवर, ठीक है? तो पहले जो 24 आवर लग रहा था अर्थ को, पहले जो अर्थ को 24 आवर लग रहा था, अभी अगर वो अपना स्पीड को इंक्रीज करवा देगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा 1.4 आवर, अगर 1.4 आवर वो घूमेगा तो फिर जी जो है ना वो हाँ जीरो हो जाएगा और सारे वेटलेस हो जाएगा, ठीक है? बताओ।